Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Just sending a reminder message to students. So, I have sent a reminder message also. Let's see. I think some of the students will be in the school also, right? From 12th standard. So only the remaining students have to join. But it is still half the class. So Yes, sir. ma'am, which class do you teach? I teach play class. Okay, you teach the play class. Okay. Yes, sir. See, because we have a split in 10th and 12th class now, right? So even in 12th class the attendance was slightly low today, but the strange thing was 11th standard attendance was so low they don't even have to go to the school. I don't know why their attendance was so low. And well, I'm hoping they will join. No one is there, sir. Their course is over, but we are doing chapter wise revision now. Revision work is also necessary, na? It is very important. In 12th standard, the course is big, right? So students tend to forget over time. Revision Yes, is sir. so important. I mean, more than the 10th standard, 12th standard, the revision is really important. There is Then no end to the course. Okay. Abhay is joining. what to do, sir? Abhay is joining now. Abhay, please switch on your camera. Right. Sir, good afternoon. Good afternoon, Abhay. We'll just wait for one more minute and then we will start. Okay. Yes, sir. Abhay, I have seen your maths activity file. It is submitted in the school. Okay. So there are some things I will tell you, right? You should improve in the file. Okay. You have done it, which is a very good thing. Okay. But I'll give you some feedback. Okay. So on Monday, I'm in school, then I will show it to you. You will be in school on Monday, right? Yes, sir. You come on Monday, Wednesday, and Friday, right? Yes, sir. हाँ ठीक है तो सर मैं सर मंडे को ही आऊंगा स्कूल. So Monday को I will give you the feedback also, right? Yes. Just remind me, huh? Okay, sir. ठीक है तो
बेटा आप ही है अभी तो हम शुरू तो करेंगे, वी कांट वेट फॉर अदर्स एनी फर्दर, ठीक है। तो आज हम जो है ईएम वेव्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, अबे वीडियो ऑन रखिए थ्रू आउट द क्लास, ओके। हाँ, तो ये रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, ओके। ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते, थोड़े बहुत तो फिजिक्स के हर एक चैप्टर में है, बट इट्स नॉट लाइक द इनिशियल चैप्टर्स, ओके। सो ये पार्ट 1 का सबसे सिंपल चैप्टर है, आई कैन से दैट, ओके। लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पे ज्यादा फोकस करना है, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि देयर आर, अभी तक हमने जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा, राइट, वी हैव स्टडीड 6 चैप्टर्स, राइट, बिफोर दिस 7 चैप्टर्स। तो इन चैप्टर्स में जितना भी पढ़ा उसको सबको कंबाइन कर कर 4 इक्वेशंस में इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि I would say not everything, but almost everything can be combined into these 4 equations. ठीक है, जो हमें मैक्सवेल ने दी है, जबकि ये इक्वेशंस मैक्सवेल ने नहीं बनाई है, राइट। इसीलिए अगर आप देखेंगे सबका नाम अलग साइंटिस्ट्स के ऊपर है, इसमें मैक्सवेल ने एक करेक्शन किया है एम्पियर के लॉ में, अदरवाइज मैक्सवेल ने केवल इन इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन किया है, राइट। और एक और इक्वेशन है जो हमें हमेशा याद रहती है, लॉरेंट्ज फोर्स, राइट। वो तो बिल्कुल सिंपल सी है कि फोर्स कैसे लगती है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस फोर्स, सर। ठीक है। तो वो आप ले लीजिए, और ये 4 इक्वेशन, तो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। एक क्विक रिवीजन करेंगे कि ये 4 इक्वेशंस कौन सी हैं। तो द फर्स्ट इज द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एक कोई भी चार्ज है, मतलब कितने भी चार्जेस हो चाहे, उनके यस सर। अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया, लेकिन कैसा होना चाहिए ये सरफेस, क्लोज्ड होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक क्लोज्ड सरफेस अगर हम लेते हैं तो इस सरफेस के थ्रू जितना भी फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through this surface is equal to the charge which is inside this surface by epsilon naught, permittivity due to free space, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चार्जेस बाहर हैं इस सरफेस से, उस पे उनका फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा, शेप ऑफ द सरफेस का भी कोई इफेक्ट नहीं है, बस क्या शर्त है, एक शर्त है कि ये क्लोज्ड, ठीक है। और इसी को जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया। इस वाले सिंबल का मतलब तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन होता है, राइट। यस सर। लेकिन ये सर्कल क्या है, सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड। हाँ, ठीक है। तो सर्कल का मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल, जिससे पता चल रहा है कि ये जो है क्लोज्ड सरफेस है, उसका इंटीग्रल इज द टोटल फ्लक्स, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसका एक मतलब और समझना चाहिए हमें फिजिकली, इसका मतलब ये है कि जो इसमें से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं किसी भी चार्ज में से, राइट, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, राइट। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो सरफेस को हम कोई भी शेप दें, जो फील्ड इस चार्ज तक पहुंचनी है वो तो पहुंचेगी ही, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। इससे हमें ये भी पता चलता है जो फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस हैं, ये इसका फिजिकल मीनिंग, समझ गए। उसी तरीके से गॉसेस का बिल्कुल सिमिलर एक प्रिंसिपल उसने दिया है, एक लॉ दिया है,
जो क्या है, दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। ठीक है, और वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, कोई भी अगर चीज मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ दोनों होगा, और जो फीड लाइंस है वो ऐसे आके ऐसे क्लोज्ड लूप बनाएंगी। अब क्योंकि वो क्लोज्ड लूप बनाएंगी तो मान लीजिए फीड लाइंस जा रही हैं ऐसे, क्लोज्ड लूप्स हैं, आप कोई भी सरफेस उन्हें कट करेगा तो अगर एक तरफ से बाहर जाएगी फीड लाइन तो उसको अंदर भी तो आना पड़ेगा। यस तो सर। इसका मतलब नेट फीड लाइंस छोड़ के नहीं जा सकती सरफेस को, वो क्लोज्ड हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट द closed integral of the magnetic flux is 0 also tells us that the magnetic field lines are not just continuous, they are also closed loops. वो उसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये एकदम इन लॉज से अलग है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन, यस सर। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ये द लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द करंट लेंथ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ एक्चुअली क्या चीज है? सर क्या होगा? पोटेंशियल होगा, राइट? तो जो हम पोटेंशियल पे क्लोज्ड इंटीग्रल ले रहे हैं वो किसके इक्वल है? वो डी फाइव इक्वल अपॉन है, हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके रेट ऑफ विद चेंज रेस्पेक्ट टू के टाइम। इक्वल। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के इक्वल। और ये माइनस साइन क्या यहाँ बताता है? ये बताता है कि ये उसको अपोज करता है। ओके, दिस ओनली मीन्स इट अपोजेस। ठीक है, और फाइनल जो इक्वेशन है वो है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है इसका, ये आपने एम्पियर लॉ की तरह पहले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि B इंटू DL का इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड बाउंड्री is equal to the current that crosses the open surface। इसमें हम क्या करते थे, ऐसे क्लोज्ड बाउंड्री लेते हैं और ओपन सरफेस ले लेते हैं कोई भी, तो जो करंट एलिमेंट्स इसको क्रॉस करते हैं, राइट, those are the only ones that we are interested in, राइट? तो वो जो इतना उस सरफेस को कट करके जाते हैं, म्यू नॉट इनटू दैट करंट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द field along this boundary। अंडरस्टूड? लेकिन फिर ये क्या चीज है, राइट? ये इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये मैंने जब आपको पढ़ाया था जिस समय ये चैप्टर, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऑल्दो ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये मैक्सवेल ने बताया था, और ये करेक्शन जो एम्पियर लॉ हमने पढ़ा है उसमें उसने किया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। इससे ज्यादा मैं इसकी डेप्थ में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, बेसिक समय पे मैंने ये पढ़ा दिया था, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन में वी विल नॉट डू दिस, दिस इज नॉट इन कोर्स। अंडरस्टूड? सो ये एक छोटा सा रिवीजन था
देखा जाए तो पूरे चैप्टर्स का बहुत ही छोटा रिवीजन. नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस, इसमें ना मल्टीपल करेक्ट आंसर्स बताने हैं आपको. एक स्टैटिक चार्ज है कहीं पे भी जो मूव नहीं कर रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? अ नॉन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या नॉन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये? एट अ गिवन पॉइंट, प्रोड्यूसेस एट अ गिवन पॉइंट पूछ रहे हैं ऑब्वियसली. यहां पे मान लीजिए पॉइंट ए, यहां पे कैसी फील्ड जनरेट होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस चार्ज की वजह से? Q1 यस सर. तो होगी. क्या वो फील्ड चेंजिंग होगी, नॉन चेंजिंग होगी? यहां पे समय के साथ बदलती रहेगी या वही रहेगी? चार्ज वहीं का वहीं है जहां है, तो क्या यहां फील्ड बदलेगी? बताओ अब है बेटा, आप ही हैं क्लास में तो आप ही बताएंगे. आपका पर्सनल ट्यूशन हो गया ये. तो ये क्या यहाँ पे फील्ड बदलेगी पॉइंट ए पे? देखिए ना चार्ज हिल रहा है ना बदल रहा है, तो फील्ड नहीं क्यों बदलेगी. बदलेगी? नहीं बदलेगी. तो नॉन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, राइट? तो ये करेक्ट है. नॉन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी. चार्ज अगर मूव नहीं करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होगी, राइट? द चार्ज शुड मूव टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज इज स्टैटिक, इसलिए यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो चेंजिंग नॉन चेंजिंग का क्वेश्चन ही नहीं होता है, ये नहीं होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए. सर नहीं होगा ये. हाँ तो ये भी नहीं होगा, तो इसका तो सवाल नहीं रहा क्योंकि एक करेक्ट है. ठीक है. यस सर. Now let's move on. A uniformly moving charge produces. अब यूनिफॉर्मली चार्ज मूविंग चार्ज है, ये एक सर चार्ज है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हम्म? सर इसका एक, ऑप्शन सी है आई थिंक. हाँ एक सेकेंड, पहले क्वेश्चन समझ लो. ये एक चार्ज है Q और ये एक वेलोसिटी V से मूव कर रहा है. ठीक है. तो क्या होगा? क्या ये इस वाले पॉइंट पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? देखिए ये यहाँ पे है और चार्ज जब यहां से मूव करेगा तो यहाँ की फील्ड चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. तो नॉन चेंजिंग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ, राइट? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, राइट? लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट तो कांस्टेंट है. करंट इज कांस्टेंट, तो नॉन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहां, राइट? तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन चेंजिंग है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन चेंजिंग नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी भी जनरेट नहीं हो रहे.
इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है ना, जिसमें करंट जा रहा है मान लीजिए, राइट, तो ये जो वायर है इसमें करंट जा रहा है, एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है। अगर यूनिफॉर्मली मूविंग यहाँ पे चार्जेस हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं जनरेट कर हो रही है चेंजिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेकिन एक नॉन चेंजिंग, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई यहाँ पे, राइट, वी नो दैट। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी भी जनरेट नहीं हो रही है, तो ये गलत है, ये गलत है, ऑब्वियसली ये गलत है। तो केवल नॉन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। पहले में क्या हो रहा था, नॉन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, इसमें नॉन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब पहले दो क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब हमें मिलती हैं, जब क्या होता है, तब जब क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस से क्या मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी अभी देखा हमने, नहीं मिलती। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस से नहीं मिलती, अभी अभी तो देखा है हमने, राइट, तो ये भी नहीं मिलती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एक्सेलरेटिंग चार्जेस से मिलती है। अब एक्सेलरेटिंग चार्जेस से क्यों मिलती है, यहाँ पे एक चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो चेंजिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है यहाँ, और चेंजिंग ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसका मोशन ऐसा है कि जो दोनों ही चेंजिंग फील्ड जनरेट कर रहा है, राइट। सो दिस विल रिजल्ट इन electromagnetic waves. Will oscillating charges also produce electromagnetic wave is the question. बताओ, क्या ऑसिलेटिंग चार्जेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑसिलेशंस आर ओनली पॉसिबल when there is acceleration, ठीक है ना। ऑसिलेशन होगा तो एक्सेलरेशन की, अब एक पार्टिकल है वो ऐसे गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर लौट के इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी बार बार, तो ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन इज अ मस्ट, ओके। इसलिए ऑसिलेटिंग चार्जेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो टिल दिस पॉइंट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि मैक्सवेल ने कौन सी चार इक्वेशंस दी है, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, फ्रॉम ऑसिलेटिंग चार्जेस और मोर जेनरिकली फ्रॉम एक्सेलरेटिंग चार्जेस। और एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इस चैप्टर का बेसिस है, ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि अगर ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं यानी कि ऑसिलेटिंग करंट है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। और जो ऑसिलेटिंग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वी नो दैट, राइट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो है ये एक एलसीआर सर्किट है, तो इसका मतलब द करंट इज ऑसिलेटिंग, in this, right?
Okay, I don't even need this actually. Okay, मैंने बस चार्ज करके छोड़ दिया कैपेसिटर को, and the current is oscillating in this, right? It is an oscillator. So can this produce light? This question can be asked, can an LCR oscillator produce light? See, the answer to this is no. It cannot produce light. What will it produce? It will still produce EM waves. EM waves it will be produced, but not light. Why? लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत हाई होती है. Light are electromagnetic waves with pretty high electromagnetic waves with pretty high frequency. समझे? तो ये जो सर्किट्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 टेराहर्ट्ज तक भी नहीं पहुंच पाती. It is impossible to create frequencies of higher than 1 terahertz. We don't have such equipment. Okay. और लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इन हंड्रेड्स ऑफ टेराहर्ट्ज. तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर एक इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बना सकते. हम एक्चुअली दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाते हैं जो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. वो क्या है? बाय हीटिंग अप अ रेजिस्टेंस. वो एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, राइट? बट using an oscillator of this nature, we cannot produce light waves. But what kind of waves can we produce? We can produce radio waves. Okay, radio waves are also electromagnetic waves of very low frequency. तो रेडियो वेव्स इस तरह से LCR सर्किट से प्रोड्यूस की जा सकती है. ठीक है. सो जैसे टीवी रिसीवर, टीवी सैटेलाइट, ये सब इसी तरह के सर्किट्स होते हैं जो EM वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, बट दे आर नॉट लाइट. अंडरस्टूड? व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड सो? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है. और ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं. तो इट इज प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज containing electric as well as magnetic component, okay, in form of disturbances. इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. Okay, so see one thing here, Abhay, actually I will have to leave now. Okay, I have to go out for something urgent has come up. Okay, so we will end the class a bit early today. Okay, can you hear me, Abhay? Yes, sir. हाँ, तो ना अभी हम क्लास थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी खत्म करेंगे आज. Okay, and we will continue from the next class. Okay, I think still I don't have the schedule for tomorrow, but I think we will have a class tomorrow also. Yes. ठीक है. So ensure you come and ask your friends to also join, right? We need to cover these topics. Okay. Yes, sir. So ma'am, I will end the class a bit early today. Okay. Thank you, sir. Okay then. I'll end the class for now. Yes. Thank you very much. Bye bye.